क्या कर सकते हैं पीछे देखो, पीछे मेरे को क्या देख रहे हो? मेरे फोन फ्रेम मिल रहा है क्या बताओ? इधर फ्रेम मिल रहा है क्या? Go outside the stage. Please go down. You guys are going outside. बातें पुरानी, बातें अधूरी, इसमें बसी है गुलामी अपनी। हाँ, बातें पुरानी। उसके बाद मार के जिंदगी की बातें, बातें। I think Vande Mataram people which we shouted at this point of time. A lot of women and girls who are present here at this point of time, and they are just gathered for the one main reason. जारी रहेगा। हम कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अरे मतलब एना वाले आते हैं ना, एना है कहाँ बताओ, एना एक और यूनिट है हमारा। आपने देखा होगा लोगों For 3 months, people were asking for them to be arrested. There was no act of police. We'll just speak to her and then. सड़कों पर उतरा है, आप किस तरीके से लोगों की एकता को देखते हैं? फायदा क्या है? ये तो ठीक है, बट इसका पनिशमेंट क्या होगा? After a few days they're going to make you forget about it. What can we do? It is the higher authorities who should come forward. मैम, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? इतने हमेशा बार-बार ये घटनाएं आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? अपने बड़े लोग को पूछो, हम तो आम लोग हैं। At a grassroots level, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लग रहा है वो लोगों की मानसिकता बदलना है, क्योंकि इस किस्म की गंदी मानसिकता इस किस्म के इंसिडेंट में तब्दील होती है। आप चूँकि मैम एक बुद्धिजीवी क्लास से आती हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास से आती हैं, आपको क्या लगता है लोगों की मानसिकता बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? Education is very, very important. From childhood, they should be taught to respect each other. A boy should be taught to respect his sister, his friend, the girls, and the girls the same way. And the girls should be given extra looking after where education is concerned. So nice. Not only the boy. Thank you. Sad, and I think I don't want to give interviews, but if we can stop this and be forced to reckon with, then definitely. sure नीचे गिर गया। कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल है, तो मैं यहाँ इसलिए मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी। फिर भी कोई एक चीज़ जो बदलाव ला सकती है, आप अगर अपने शब्दों में कहना चाहें। लॉ एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ
if fast tracking of how to handle criminals happens, I think we will be in a much better place. अगर 40 ही दिनों में हम अपने criminals को सज़ा दे दें और वो भी कड़ी से कड़ी, I don't think we will have this happen so often. Thank you. Education. आओ साथ में कर लेते सर. अरे he's my hero यार. इज माय लाइक गुरु. गुरु. या इनको देख के तो बहुत लोग सीखते हैं. Samira, much appreciate like आप यहाँ आए और you're strengthening the cause for this. See, I'll tell you, आज मैं सुन रही हूँ जो भी everybody what they're saying, lots of blame game is going on कि government ने कुछ नहीं कर रहा है, political parties are making this one about the politics. लेकिन मेरा एक ही, I am here peacefully to say कि बदल आने के लिए you have to start from grassroots levels now here. As a mother of a small baby, I can say कि I want all mothers to teach their sons to respect girls, to respect women, and that starts very early in life. और अगर as a society, if we take that stance, बदल आएगी, लेकिन it'll take time. It'll take 10 years, it'll take 5 years, but that change will happen today. As a society, we need to change the way women are looked at. The problem is that all this is happening because women are looked at the wrong way. And why is that? What are we doing wrong as parents? What are we doing wrong as a society? How are we portraying our women on screen? How are we talking about them? What are the jokes we're making? How are we demeaning them? That is why I'm here, to say that is how we should be doing it. Not tu, मैं, हम, यहाँ, anger, cause, Modi government, no. As a mother, I'm here to tell all mothers, do your job and make the change happen in your own home. And that is how we can make a change. It will happen. I think education is a must at all levels, because that's how you can teach a man to respect a woman and a woman to understand that she shouldn't be ashamed of even speaking out. They are saying, will it change that we all are here? I said, somewhere out there, some woman is listening and she's going to go and tell her family कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये हादसा हो रहा है. Somebody has to have the guts, and for the guts, all our support needs to come into play to say we are with you. And that is the change we are making today. We are not going to have overnight change. नहीं होने वाला है. It will take time. चीजें ज़्यादा बुरी होती जा रही है. बुरी नहीं, ज़्यादा बुरी नहीं हो रही है. अभी we are talking about it. I feel it has always been there. It's been there even at the times of our parents, but nobody had the guts. If you, हाँ, बोल नहीं पाते हैं, और क्योंकि they're ashamed. If you see, at least 4 out of 5 women are molested. I will guarantee you that. It's just that nobody has the guts to talk about it. If you look at my mother's era and our stories I've heard, of course there's there. It's just that aaj social media, news outlets, everyone's talking about it. People are here supporting it. So that fear has gone. So everyone's talking about it. Thank you so much. Amen to what you said. कि जल्दी मतलब जो चीज़ें हैं समय लगेगा, लेकिन शायद वो समय जल्दी आए. बिल्कुल आने ही वाला है, and we are going to have many issues like this. Unfortunately, we're going to have many gatherings like this. That means there are many more issues going to pop up, but that will move us in the right direction. And the government needs to help in terms of the right laws, in terms of the right movement. They need to support in that way. We need to be a better society. That's all. Thank you so much. Yeah, thank you.
Boss, boss. Ma'am, you come here, ma'am. You come here. You come out. यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार? और मतलब करके मजा भी ले रहे हो। आप कहाँ पे है और किस मतलब मुद्दे पे खड़े हो उतना तो समझो यार। हाँ पीछे से, लेकिन धक्कम धुक्की औरत के साथ क्यों कर रहे हो इधर यार? शांत हो जाओ प्लीज। चलो रोल रोल। What do you want to say about this horrendous act? It's very inhuman. ब्रदर मैं हिंदी में बोलूँगा अगर आपको Please. क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्नाव में जो हुआ है, कठुआ में जो हुआ है, लोग इस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ये हिंदुओं के खिलाफ है या मुसलमानों की तरफ से है, ये बकवास है। ओके, ये बच्चियाँ हैं, हिंदुस्तानी बच्चियाँ हैं। ओके, इनके ख़ानदान हिंदुस्तानी है, जो इनके लोग लड़ रहे हैं इनके लिए वो सारे हिंदू हैं। ओके, इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बंटना ये अंग्रेज़ देकर गए हमें विरासत में और हम इसे आगे ले जा रहे हैं। ये बंद होना पड़ेगा। फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस ये जो है ये बंद होना पड़ेगा। आप हिंदू नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप भारतीय हैं, सीधी बात है। दूसरी बात ये है, सीधी बात और सामने बात ये है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एपॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, मतलब इसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है। ये गलत बात है। ये देश हमारा है। हमने कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को ये देश चलाने के लिए कुछ देर तक दी हुई है। ओके, ये प्रजातंत्र है। ओके, ये हमारा देश है। ओके, हम जैसे चाहेंगे ये देश वैसे चलेगा और हम ऐसे ये चाहते हैं कि इस देश में बलात्कार बंद हो। बलात्कार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो। बलात्कारी जब साबित हो कि बलात्कारी है तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यहाँ तक कि मौत भी मिले। स्पेशली जो बच्चियों के साथ में या बच्चों के साथ में बलात्कार करते हैं, ये बिल्कुल भारत के सहन के बाहर है। ओके, कुछ लोग, मैं सामने से कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, निडर होके कह रहा हूँ, आप सबको भी कहना चाहिए, कुछ लोग इन बलात्कारियों को बचाने निकले थे। ये बात सबके सामने है, सबके सामने है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, देख लीजिए कौन थे वो लोग। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ओके, अगर आप कहते हो कि ये इस बात की कोई राजनीति से लेना देना नहीं है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि राजनीतिक तौर पे इस बात को किया भी गया है और फिर उनको बचाने की कोशिश भी हुई है। आप सब जानते हो कि कौन है ये लोग। जिस दिन हम सब जागेंगे और कहेंगे कि हमको बेहतर भारत चाहिए और इन लोगों को लात मार मार के निकाला जाएगा और बेहतर लोगों को इनकी जगह में रखा जाएगा कि वो भारत हमारे लिए चलाएं और हमारे टर्म्स पर चलाएं, उस दिन ये देश बदलेगा। और मेरी दरख्वास्त है कि आप ये सब अपने जहन में बिठा लें और बहुत गौर से देखें कि जिन लोगों ने उन बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की, दोनों जगहों में वो एक ही थॉट प्रोसेस, एक ही मानसिक विचारधारा के से निकलते हैं, उभरते हैं। जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, कुछ लोग हैं ऐसे जो आप देख सकते हैं, जो इंटरनेट पे अभी इस वक्त बवाल चल रहा है। ओके, वो भी इसी विचारधारा से निकले हैं। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड, इंडिया इन लोगों का नहीं है, इंडिया हमारा है। ओके, ये लोग एक बहुत छोटी और बहुत कमज़ोर सॉर्ट ऑफ मिनॉरिटी है हमारे सामने। और मैं हमारे बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सब जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, वो इन डिवाइसिव ताकतों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वी नीड टू वेक अप, वी नीड टू चेंज दिस एंड वी नीड टू सेव इंडिया राइट नाउ एंड वी नीड टू सेव ऑल द गर्ल्स इन इंडिया राइट नाउ। One question that I wanted
I really want to go, yeah. Only 2 minutes. देखिए कितनी शर्मनाक बात है हमारे साथ जो हुआ है, बदलाव ही नहीं आ रहा है, हम देखते जा रहे हैं इस तरह की ना इस तरह का केस हम लगातार देखते जा रहे हैं, क्या कहना है? आई थिंक हमने ये देख लिया है ना कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टैकल दैट प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी कर नहीं रहा है तो हमें ही करना पड़ेगा. तो इसलिए हम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं और हम और भी कर सकते हैं. आई फील देयर इज सो मच मोर टू बी डन. आई थिंक जो शर्मनाक चीज़ है वो है कि so many people have had to come together and make such a noise and you know there has been so much outrage. तभी जाके इस केस को लिया गया है and people have have brought it out into the open and are dealing with it. जनवरी में हुआ ये, अभी आप बताइए कितने महीने गुजर गए हैं. एंड देयर आर सो मैनी गर्ल्स एंड सो मैनी फैमिलीज दैट सफ़र लाइक दिस, और उसको एक रिलीजियस एंगल दे दिया जाता है. ह्यूमैनिटी का क्या हुआ? वाई इज़ इट अबाउट religion? Why is it about community? Why is it about caste? It's not about any of those things. It's about humanity. It's a basic thing. Girls in our country need to be safe, and we cannot have a situation where they're constantly violated and people are constantly getting away with it. It's a problem. आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, काफ़ी वक्त गुजर गया, जनवरी में हुआ था और कहीं ना कहीं आप किसको दोषी ठहराएंगे इस बात में? आई थिंक जो एक लोगों का दिमाग है इस कंट्री में, पता नहीं हम सबको क्या हो गया है, एकदम फिर गया है. एंड आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट आई थिंक लड़कों को पढ़ाना चाहिए और सच में उनको एक खींच के थप्पड़ मारना चाहिए अगर वो ना समझें कि उनको क्या बताया जा रहा है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट men think that they can do anything to women and get away with it. It's not okay. But हम ये मैसेज दिया जा रहा है टू द कंट्री कि fearlessly अपराध हो रहे हैं women पर. तो yeah, so it's up to us to stop it now. कहीं ना कहीं जब भी बिजनेसमैन और बड़े लोगों की बात करें, इस तरह के केस होते हैं तो जल्दी सुनवाई, जल्दी एक्शन लिया जाता है. इस तरह के केस जल्दी सॉल्व नहीं किया जाता. अदालत से भी गवर्नमेंट से भी अच्छा रेस्पॉन्स और पकड़ा भी जाए तो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है. इसके बारे में गलत है. अब मैं क्या बोलूँ? इट्स वेरी रॉन्ग. इट्स करप्शन एट टू मेनी लेवल्स. इस केस में भी इतने टाइम से बाहर नहीं निकला क्योंकि ब्राइब्स दिए गए थे. तो it's I mean we are becoming a very corrupt country and we shouldn't be like that. We're a far better country than we are giving ourselves credit for. I mean we should be. हम हमारी कंट्री में जो अच्छा है and that is that we are so diverse and we are a syncretic culture and we should celebrate that and we should work towards making empowering our country and especially the women of this country. जब तक एक लड़की एम्पावर नहीं होगी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है. आई थिंक ये सिर्फ एक केस नहीं है. ऑफ कोर्स ये केस अब बहुत बड़ा हो गया है एंड थैंक गॉड बड़ा हुआ है ताकि उसको इतने it gets those eyeballs which it really needs, because I think laws need to be changed, laws need to be more faster in terms of जो trials होते हैं, that needs to speed up, justice needs to come really soon. Then we have been women have been suffering for years and years and eons and decades maybe and centuries, and I think high time औरतें अब जाग रही हैं, समझ रही हैं
और एक they have a certain urge now to have their own right, and again they understand that we need to be respected. हमारी bodies कोई खिलौना नहीं है, कोई object नहीं है कि आए खेले चले गए मार दिया. उतने ही इंसान है जितना एक आदमी इंसान है, उतना ही खाता पीता सोता है जितना एक औरत करती है. तो आदमी और औरत contribute कर रहे हैं together society को, एक अकेला आदमी नहीं करता है. And I think it's high time that the laws change, and I think high time that the politicians of this country take this matter very very seriously, because ये अब literally पानी सर के ऊपर से निकल गया है. And I think अब time है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो I think शायद औरतों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा सब कुछ, and then I don't know where it goes from there. The one thing that I want to say is how many people, how many women, एक निर्भया हो गई, एक आसिफा हो गई, और कितनी लड़कियों के साथ. I mean, ये तो सिर्फ these are the highlighted cases. Otherwise, there is one every single day somewhere or the other. तो कितनी सारी ऐसी cases आएंगे और उसके बाद आप you'll wake up. कब जागोगे? They are not waking up. That's the point. The reason why we are here. It could be your sister, my child, her. It could be any one of us. So for how long? How long do we suffer this? अगर आप change नहीं होंगे, अगर मैं change नहीं होंगी, तो ये change नहीं होगा. We want fast track justice and we want justice now. And I think very stricter punishments. विद्या ने जैसे पहले कहा कि अगर आपके मन में डर नहीं होगा तो आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा you can get away. Like बहुत लोगों ने यहाँ पे भी कहा कि you can, the whole thing of they feel they'll get away, and that's why nothing is happening. So the reason the government needs to take a stricter stand is because they need to instill that fear in people, whether it is men or women, from the wrongdoing. जब तक वो नहीं होएगा, जब तक डर नहीं बैठेगा, इंसान अपने conscience को control नहीं करेगा. So I think how that's... dare does a person call the other person and say, oh please come here because this is a party happening? Raping a little girl is a party? I mean, how? Where? What is this mentality? और कहाँ से ये आती है? ये हमारे society के अंदर है. There is a ये गंद है, इसको बाहर निकालना जरूरी है. और अगर उनको आप hang और punish नहीं करोगे, तो कैसे जाएगा आगे देश? How? There's a documentary which was done. There was a documentary which was done in Haryana state. और वहाँ स्कूल के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ ये समझते हैं कि रेप लड़के और लड़की दोनों की गलती है, which is unbelievable, क्योंकि ये हम थॉट प्रोसेस उनके मन में डाल रहे हैं. छोटे छोटे स्कूल के बच्चे कहते हैं कि लड़कियां चलती ऐसे हैं या जीन्स पहनती हैं तो इसीलिए वो हमको अट्रैक्ट करती हैं. Really? I mean, this is where we are getting at now. They're going to decide what we'll wear and then they will feel attracted or not. Even लड़कियां for that matter ये सोचती हैं कि रेप लड़की और लड़के दोनों की गलती है. तो हम क्या सोच अपने बच्चों में डाल रहे हैं, I think ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. And Haryana honestly is a state which is, it is a rapist state, I'm sorry, but no, maximum number of rapes happen in that state and nobody does nothing. And ये सिर्फ mentality बच्चों की नहीं है, वहाँ पर औरतें जो हैं वो भी यही सोचती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं चलना चाहिए. एक छोटा लड़का वो कहता है कि हाँ लड़कियों को जब काम हो तो ही निकलना चाहिए बाहर, वरना घर में रहना चाहिए. This is what we are putting in their heads, and that's the reason why they are growing up to be people like these who are raping children. So I guess we are doing something definitely wrong right at the root level of our country. Thank you very much. Thanks.